Again, I think, yeah. Along with us, we have Mr. Anand Kumar, founder Super 30, the Mr. Lieutenant General Zamiruddin Shah, former Vice Chancellor, Aligarh Muslim University, former Dr. Ashraf Rizvi, former Dean IIM Indore, Professor A.K. Sharma, former Vice Chancellor, Punjab Technical University and former Director, NIT Delhi. I'm handing over to Mr. Vaidya Rahman. Since she is the first time on the Zoom, I try to give her a chance to speak because we want women in our society empowerment anyway. So now, Alhamdulillah, I believe all the participants has joined and people around the world is joining us slowly. Here is 8 o'clock, 8:15 almost in India time. जो आज का प्रोग्राम होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, this program is designed by Rahman 30. Rahman 30 is a part of the Rahman Foundation. We give the training to the underprivileged students, 30 underprivileged students, and a pattern of Shri Anand Kumar Ji Super 30, because it's a part, all the supports Anand Kumar Ji has given throughout to his patronage is with us from the beginning to this Rahman Foundation, particularly for this our Rahman 30 program. इनके बीच में हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं. आज का जो प्रोग्राम है, that is mostly the focus on the success story of our student Akibur Rahman, who is happened to be one of our brightest students. He is alumni of both the top institution, IIMS Dhanbad, Indian Institute of IIT Dhanbad, and IIMS Lucknow. IIM Ahmedabad. Sorry, is Ahmedabad is alumni of both the top institution. A part of that, he has done a tremendous work. His work has already been recognized by Forbes magazine. Very innovative idea, very innovative thing he did in the male motto. Since we have Dr. Ashraf Rizvi with us, he is a former Dean IIMS Indore, and he is Chairman Maxwell Leadership Council. He was also a director in Jaipuria University, Jaipuria Management, and he also worked as an advisor to Chancellor in Integral University. We are lucky he is with us. Since Akibur Rahman is our IIMS alumni, तो IIMS इंदौर के बारे में लोग कहते हैं कि IIM इंदौर जो है वो one of the toughest है. तो इनके स्टूडेंट हैं IIMS के, तो मैं गुजारिश करूंगा अशरफ रिजवी साहब से, डॉक्टर अशरफ रिजवी साहब से, कि वो बताएं कि जो IIMS के बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया है जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, जिसमें वीर सन फर्मा के मालिक हैं वगैरह. तो ओवर टू यू Ashraf Rizvi Sahab. Thank you very much, Mr. Rahman. Hello, everybody. Assalamu alaikum. Especially Zamir Sahab, Anand Kumar ji, and Mr. Akibur Rahman. Well, I'm lucky that I've been invited by Mr. Rahman to be here.
I think he has selected the perfect person to tell a story, because I know Aqibur Rahman for a long time, and he's definitely a very hardworking, talented, intelligent, and a committed student, and who has entered into entrepreneurship and did very well. When he was a student of IIT, I was lucky to teach him. Then, of course, after IIT, he joined IIM Ahmedabad and did his MBA from there. And instead of going and doing a job, he chose the path of entrepreneurship, which is very difficult. Of course, 10 to 15% students of IIMs normally go for entrepreneurship, but the success rate is not very high. I don't find that many IIM students are really successful as entrepreneurs. The reasons can be many, but entrepreneurship is a very tough journey. And it's not for everyone. In fact, entrepreneurship is for the select few. Because, it's like you're trying to create something of your own, which has to be not only different from others, it has to be better than others. You are creating something which is new, which is innovative, which is excellent, and it's not an easy job, which of course Mr. Rahman has done and shown to the world. I was very happy to know it got to be noticed by the world, and his company has got good investment, and he has been really selected by Forbes to tell his story. I'm sure his story is going to be very, very inspiring for all of us, but especially for the students. Now, coming to Mr. Obaidur Rahman about IIMs, well, entering into an IIM is itself a very difficult task, because, out of 2-3 lakh students, you need to crack CAT with a very high percentile. I think Mr. Rahman must have something above 99. I mean, you need to be among the top 1% or 2% in the country to be selected and called for interview. But I mean, CAT is not enough. The value of CAT is just 30 to 40%. And it's getting reduced. The remaining 50 to 60% is interview and the other selection process. Nowadays, we have got a VAT, written analysis test. Earlier, they used to have a group discussion, but they have now changed it to written analysis. The VAT, which is written analysis test, is a very typical test. You get a very, you can get any topic, and you are supposed to write on that topic. It's a kind of free writing. And this has been proved to be better for the selectors to select student for. I have been in the selection committee many times, and I know it's really tough. So first of all, congratulations to Mr. Rahman, not only going through to IIM, but also coming out successfully and starting his business. Then, the 2 years in IIM, it's not much of a teaching. I'll not say that IIM is purely a teaching place. It's more of, interacting with the peers, understanding the business world, getting connected to the business world at large, taking part into all the activities of the institute, and of course, attending the classes, and moreover, doing the assignments. The assignment part is the toughest part of IIMs. I mean, students need to wake whole night to complete. I mean, Mr. Aqibur Rahman must remember the days when he was supposed to prepare assignment and he was just not able to sleep. Because, it's like, it's not that simple. I mean, whenever you are working on an assignment, you have less time. Classes are also there. I mean, they're in, you have different subjects. Almost all the management subjects are taught in 2 years. And you're supposed to do well because you have to get a job. Although every student of IIM gets about 2 to 3 offers. So if somebody chooses entrepreneurship, he or she takes a risk because he has already got 2-3 offers of job. But instead of going and selecting and taking a job,
which would be, of course, a good job with a good salary, the person is going to take a risk. I know many students who are in touch with me. They are into entrepreneurship and they are doing very well, but some of them are still not doing very well. Now, as this is, when you go from campus to the real world is very different. It's not like what you learn from books and what you learn from the classes. It's very different. You know, it is like whatever theories you learn. Since I have been, you know, the Dean of Executive Education, Chairman Executive Education, and for almost more than 6 years, I've been part of the corporate world and I've got connection to the corporate world. I can say that the corporate world is a very challenging place. It's very competitive. It's very challenging. It challenges you every day. It's not a simple, you know, like straightforward that you apply one theory and you are successful. It's not like that. And that's why when you leave the campus, whether it is IIT or IIM, whether it is the best campus in the world, when you leave the campus, you leave a different world and you join a very different world. I mean, I've talked to Aqibur Rahman. I'm thankful to him that he was part of our program where we were preparing students for IIM admissions. And I talked to him many times. It's like, it's so different, the outside world, the corporate world, that you need to learn new things, a lot of new things. You will be given all the theories of finance, of HR, of human relationships. You will be given everything. I mean, everything in the theory present will be given to you, taught to you. But yet you to learn a lot of new things, a lot of new ideas, how to interact with people, how to meet and influence people, how to get your ideas across the world, how to get yourself accepted, how your ideas can be sold. All these are very, very challenging. And I see, at least, I will actually be happy if Mr. Rahman tells about the kind of challenges he faced and how he dealt with those challenges. Probably that would be very useful for the listeners, for most of us. So what I will say as a teacher, I have also seen the outside world, because after IIM, I worked for 5 years as the director of Jaipuriya Institute of Management, 2 years in Delhi and 3 years in Lucknow. And that was a different outside world. So I can say it's really different. And then you need to learn new tricks, new skills, new ideas, and new knowledge. And you have to prepare yourself for the challenges that you face every day. Challenges in interacting with people, challenging is getting accepted, challenges in people accepting your ideas, challenges related to your ability to make the world accept you and your ideas, because it's not that simple and easy. With these words, I'm sure I give best of luck to all the listeners. I'm sure the speakers are really very good, and you will listen a lot from them. So good luck to everyone. And I'm sure that Mr. Rahman's story will be inspiring for each one of us. Thank you, everybody. Thank you, Mr. Rahman. Thank you for inviting me. Thank you very much. Jazakallah khair. Thank you very much, Dr. Ashraf Rizvi. आपने जो बातें कही और जो एक्सपीरियंस शेयर किया, जो बच्चे प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोग आज ये प्रोग्राम बातों की तरह करेंगे, कोई बहुत ही फॉर्मल सा प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग ये स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स वी हैव अकीबुर रहमान विद अस, ही विल टेल आवर स्टोरी, हिज स्टोरी। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, NIT के, जो ये बता सकते हैं बच्चों को
कि जो बच्चे आते हैं इनके पास वो किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स उनके पास भी बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी ऑफ कोर्स, जो वहां से जो लड़के कामयाब हुए हैं और देश का विश्व में नाम पैदा कर रहे हैं। तो उन ऐसे लड़के जो आते हैं आप लोगों के पास, उसमें क्या खूबियाँ आप पाते हैं? अगर आप अपनी कुछ स्टोरी शेयर कर सकें, कुछ अपने ख़्यालात ये कर सकें, और आकिबुर रहमान ने जो किया है, इसकी जो स्टोरी आपने देखी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे शर्मा जी से, डॉक्टर अजीत कुमार शर्मा, जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, और डायरेक्टर रहे हैं एनआईटी दिल्ली में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दो बातें रखें हम लोगों के सामने। Thank you, Rahman ji. Good evening to all of you. Shri Anand Kumar ji, founder Super 30, General Jamiruddin Shah ji, ex-Vice Chancellor AMU, Mr. O. Rahman ji, Chairman and CEO Rahman Foundation, Dr. M. Ashif Rijvi, ex-Dean IIM Indore, and Akibur Rahman, co-founder Mail Modo, and other participants. It's my proud privilege to be here, especially on this occasion of a webinar on success story from Super 30 to founder of a startup. So at the outset, I would like to congratulate Akibur Rahman, the CEO of Mail Modo, and I would like to also congratulate Shri Anand Kumar ji, because from 2018, he was connected with Shri Anand Kumar ji, and as already it has been told that Akibur Rahman, he was the alumni of IIM ISM Dhanbad, and also IIM Ahmedabad, and along with his team members are Apurva Gupta. He was from again IIT ISM Dhanbad, and Devyansh Tandon from IIT Bombay. So I would like to congratulate all of you for this startup, and I'm happy to know that recently this startup has been funded by the prestigious VC firms, and this funding is nearby $2 million. So it is the proud moment for all of us that this startup is funded by the prestigious VC firms. And I would like to also share that it is already, everybody knows that Mr. Rahman belongs to Purnia, Bihar, and he was from the beginning, he was with Anand Kumar ji. And when this invitation was, I have received this invitation from Rahman ji, and I have gone through this Mail Modo. I have just seen the website, and I am able to, I was very impressed, because nobody has thought about this, that what are the facilities which can be given in a email. So the features which I'm able to know that we can add the forms and other apps inside the mails, and especially we can send the bulk mails and triggered email campaigns. So this is a wonderful feature. And in addition to that, that create surveys and feedback forms. So it is the, I think, very good startup, and the initiative which is taken by Akbar Rahman and his team and Rahman Foundation. So basically, I would like to say that in NIT also, and even in PTU, many students, they are enrolled in various startups. And even the government of India, they are funding for all these startups, and various schemes has been launched by government of India. And they have, for the ease of the, basically for the students, the self-certification is also that can be done with the government agency, and easy registration and patent protection is also possible.
and the corpus fund, which is earmarked for these support of the startups, that is around 10,000 crores. 10,000 crores. So, and there is provision that no capital gain tax and no income tax for 3 years if you do the startup. And of course, the income tax exemption and for investment in higher value, that is also there. And they have also setting up the incubators. And they have made a provision of various research parks, especially in NITs and IITs. So that is basically for the students to facilitate them so that they can start their startups. And they, even the NITs, they provide plug and play facility to all these startups and the pass out students. So this is the facility which all NITs and IITs they are providing. And I'm happy to share that this is a success story, especially for Akbar Rahman. And recently I have gone through the survey which has been done by IBM. Generally that survey, it finds that 90% of the Indian startups, they fail. So there may be many reasons, but I am happy to see this startups that this is a success story. And according to, I have seen this report, and it has been found that 27,000 startups were registered in till 2020, and many jobs have been created by these startups. So we should be basically, I would like to advise the students that we should be not the job seeker, we should be the job creator. So definitely this is the success story and for this Rahman Foundation. And I am thankful that I have been invited for this, just for the interaction. So, and I am very much associated with Anand Kumarji from the long term when I was director at NIT Delhi. And I am happy to see all of you. And I am thankful that you have invited me for this occasion. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sharma. And all हमारे पास बहुत ही अच्छी स्टोरीज और बहुत ही अच्छी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो है कैंपस टू कॉर्पोरेट। और कैंपस के बारे में मैं समझता हूं कि जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, इसलिए कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फेमस, और जिसके एलुमनाई पूरी दुनिया में हैं, और उन्होंने जिस तरीके की कारकर्दगी की है, जिस तरीके के काम किए हैं जो एलुमनाई हैं, और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेहतरीन इंसान और हम सब लोगों के मेंटर, बैटलफील्ड में रहे एक जुझारू आदमी जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिखाया है कि कैसे पढ़ाई के फील्ड में या किसी भी चीज में कैसे जीत हासिल की जाती है। सो आई वुड लाइक टू request Lieutenant General Zamiruddin Shah Sahab, former Vice Chancellor, Aligarh Muslim University. Please speak few words. Thank you. Assalamu alaikum, everybody. Jai Hind. Ubadur Rahman Sahab, thank you very much. I'd like to congratulate Akibur Rahman for this wonderful app which he's created, which helps in shopping. His Mail Modo, I think it's very aptly named. Any product
must be properly named. It must have a catchy name. I'd like to tell you a few things. Firstly, before you become an entrepreneur, learn the ropes first. If you are not already from an entrepreneur family, from a business family, don't try and poke your nose into business. It will fail. So learn the ropes first, then go into the business. Take over. Everybody does that. You have to identify what the market wants. If the market wants a particular product, then only go into it. Otherwise, don't bother. The market is already flooded with so many products. Do something different. Make something unique, like Akibur Rahman has done. And then only you will succeed. I don't want to give a moral lecture on success, hard work, this, that, everybody knows about it. But success will depend on two things. First is your ability to network. If you don't know how to network, no matter how brilliant you are, you will not succeed. You've got to network, you've got to make friends, and you've got to get inputs. So networking is the most important in business. And what will help networking is your ability to get along well with people. I would say that your ability to play games, play golf, play tennis, play squash, will help you to make such strong friends that you will have no problems in networking. Okay, all of you must remember that. Networking, networking, networking. You have got to have knowledge, and you have got to have the ability to speak well. Without that, you cannot succeed. How will you get knowledge? How will you learn to speak well? By reading. I yesterday gave a speech to Delhi University, a small talk of 15 minutes on the love for reading. If you are not well read, I'm afraid you will have no knowledge. You will not identify where the problems of the world lie. So learn to read. And this is a habit you've got to develop. You must develop the habit of reading at least 30 to 40 minutes every day. Make it a habit, like habit of reading the Quran or habit of reading any religious book to which you have faith in. But general reading, every individual must read preferably for 1 hour. The time for reading, not when you're feeling sleepy or about to go to bed, no. Reading must be early in the morning when your mind is fresh. Remember that. Read whatever you like, whatever interests you. If something doesn't interest you, don't read it. If a book, there are three types you can read. My principal always said, some books are to be read, others swallowed, and some to be chewed and digested. So skim through a book which you don't find of great interest. If it's of partial interest, read it. And if it concerns you, if you are interested, chew and digest that book. What do I mean by that? Read it, mark it, take notes, and remember, once you have taken notes from a book, it has sunk into your memory. Your retention of what you read is most important. No point reading and not retaining what you have read. Vital that you retain. And how do you retain it? By taking down notes. Once you've written something, your mind tells you
that what you have noted is important and you will retain it. So read in the morning, take notes. I would strongly recommend all of you to switch over to digital reading. Now you'll tell me, oh, there's no fun unless you're holding the book. I also felt the same like you. That means I must hold a physical book in my hands so I can mark it. I do that sometimes, but I have switched over to Kindle. You can do in Kindle what you can do in a normal book. You can mark, you can highlight, and the advantage is that Kindle allows you to send an email. It gives you in a concise form all the notes you have made. So send an email and you got your notes ready. Now, all those who are listening to me, I'm sure you got an iPhone, something like me. Use it to its maximum capacity. I've got an iPhone 12 and I can take down hundreds of notes. Whatever I find of value in conversation or in reading, I make a special note. So your index of your notes is very important. So that at a glance, you can find what you're looking for. Otherwise, you'll be searching. Your index of your notes is very important. And once you have your notes ready, you are ready to speak anywhere on any subject. And in a position of authority, when I was Vice Chancellor, I used to attend 2 or 3 seminars every day into topics which I didn't know. I mean, I was a soldier. But I used to read through whatever was ahead. The feedback the dean used to put up, that tomorrow you are attending a seminar on so and so. These are the highlights. I would Google, find out a little bit. So it is vital for you to have as wide a knowledge as possible in all subjects. Let it be games, let it be, you all must know what's happening in Afghanistan. You must know the implications for the Taliban takeover, the effect it'll have on India. That is the most important. Whenever you read something, examine what is going to be the effect of this development on your country. That is very, very important. I would only say that the key to success is, of course, sweat. You've heard of the dictum, 99% perspiration, 1% inspiration. Well, even a donkey sweats. But a good dog is intelligent. I'm very fond of dogs. My dog knows 30 words of command. I've taught it. So don't be a donkey. Be an intelligent human being. So your 99% perspiration must go into reading and broadening your knowledge, and of course, working hard for your boss. So the key to it is don't venture into a project on which you don't have background knowledge. Learn about it first. You know, why are Banya so successful in business? Why are Parsis so successful? Because for generations, they've been doing it. Learn the ropes and then swing on the ropes. I wish you success, all of you. I repeat again, do something different, do something unique like Aqibur Rahman has done. God bless you all and may you have success. Thank you very much. Thank you very much, General Shah. आपने जो बातें कही और रियली जो बच्चे सुन रहे हैं उनको तावीज़ बना के उस बात को रख लेना चाहिए। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए आपको जो टिप्स मिले हैं वो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है और कितनी किताबें अक़ीबुर रहमान ने पढ़ी होंगी
यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैं अब चूंकि वक्त है उस हीरो को बुलाने का, उससे बातें करने के लिए, कि एक बच्चा जो एक छोटे से गांव से निकल के आता है, बिहार की रिमोट लोकेशन से, और एक अज़्म लेके आता है और एक अपनी दुनिया फतह कर लेता है, अपना मुकाम बनाता है, और ऐसा मुकाम बनाता है कि उसको इंटरनेशनल मैगजीन्स कवर करती हैं। मेरी बातें कुछ वक्त पहले अकीबुर रहमान से हो रही थी, तो उन्होंने जो मुझे एक बात बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि इनके पढ़ने में इनके फादर का तो रोल है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इनको इंस्पायर किया है वो इनकी माँ ने किया है। और तमाम लोग जानते हैं कि अगर एक घर में खातून पढ़ी लिखी हो तो वो पूरे बच्चों का एक अच्छा परवरिश करती है, एक अच्छी परवरिश करती है। और उसके मिसाल है आकिबुर रहमान। उनसे बातें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी कि किस तरीके से वो आए, पटना आए, कैसे सुपर 30 को उन्होंने खोजा और फिर आईटी किया, आईएम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद से, फिर अहमदाबाद से आईएम्स से उन्होंने एमबीए करा जो कि टॉप मोस्ट है। तो दो टॉप इंस्टीट्यूशन से के एलमनाई हैं, उसको कैसे उनका सफर कैसा रहा, क्या किया, तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि आकिबुर रहमान के जुबानी उनके जरिए ही सुना जाए, और फिर हम लोग बीच बीच में आकिबुर रहमान से बातें करते रहेंगे। तो आकिबुर रहमान अपने आप को अनम्यूट कर लें और हमारे जो लोग हैं उनको आप बताएं कि कैसा रहा आपका ये सफर, पटना आने का सफर आपका कैसा रहा। Hello everyone. Thank you, Ubaidullah sir, and thank you everyone else as well. Thank you, Anand sir, for giving me an opportunity to like talk here with among all of you. And I see so many respected teachers and people here, like Zabir sir, and Anand sir is also there. So it's my privilege first of all. And yeah, so Ubaidul Rahman sir, to answer your question, um, so I come from Purnia, Bihar. So there I live. So my parental home is in a village called Mehmaria. However, my my mother and father always wanted me to study well. At that time when I used to like when I used to study, school situation etc. in the village was not good. So that's why my parents wanted me to live in Patna. Initially, I was living with my maternal grandparents, Nana Nani, and I used to study in Patna Muslim High School from 7th class onwards. So I did my 10th from there, and after that, uh, I had a lot of interest in mathematics, and somebody told that Anand sir is the best teacher in maths, and at that time in newspaper also it was published that 30 out of 30 students of Super 30 got into IT. So I got admitted in Ramanujan School of Mathematics, and one of the other reason was the fees was very less, like only nominal, etc. And we started studying there, and then I got into Super 30 as well. And Anand sir always loved loved me, and I always used to enjoy the mathematics class taken by Anand sir, and how he taught us at that time is still. Uh, it was so good that I can still remember all of that. So I can still remember how he used to teach. I can still remember a lot of problem solving and how he used to teach, solve those problems in multiple ways. So that has been my journey in Patna. After that, I got into IIT ISM Dhanbad,
after cracking JEE, and there I was doing mining machinery engineering. However, in college I realized that I always want to go on the business side. I wanted to do business and study business. So I was aiming for one of the IIMs, and I applied for CAT, cracked CAT, and fortunately I got into IIM Ahmedabad. And after that, I I was working in corporate. I started smelly because I wanted to start something of my own. I wanted to get an experience, like Zamir sir was saying that you should get experience first. So that was my way of getting to know how things work in a startup, how things work in the entrepreneurship. So I worked for about 5 years, and that time I basically learned doing business, learned various aspects of business, and as well as I had some financial abilities which I tried to fulfill before jumping and taking the risk to start something of my own. So that had been the journey. After that, I started Mail Modo last year. आपसे बातें होती रहेंगी। आज आपको अभी हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपसे आपके जो गुरु हैं आनंद कुमार जी, जो विश्व विख्यात हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, और आपने जैसा बताया, मैं कुछ आपके कारनामे उनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्लास में कैसे बिहेव करते थे, कैसे आप प्राइज जीते थे। वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जिसको हम लोग जानना चाहते हैं। तो अभी आपसे अनदर 10-15 मिनट हम लोग बातें करेंगे, ठीक है? कुछ सवालात होंगे। अब ऐसे तो आपने बहुत सारे सवाल का जवाब दिया होगा सर को उनके क्लास में, ठीक है, लेकिन कुछ सवालों का जवाब आपको अभी यहाँ भी देना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आतिकुर रहमान की जर्नी, ये 2 मिलियन यूएसडी डॉलर से का जो सीड फंड है, वो अब बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। इट्स अराउंड, अभी आनंद सर आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो मैं सीधे वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे, चूंकि आनंद जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके के, तो मैं सीधे आनंद कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपनी कुछ बातें बताएं, और फिर हम लोग बातों के दरमियान में आखिर से बातें करते रहेंगे। आनंद सर। नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित अच्छी बातों को सुनने का मौका देने वाले जनरल जमीर साहब, हमारे गार्जियन जिनको मैं गुरुदेव बोलता हूँ, हर समय उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है जीवन में, और आज ये जीवन में मैं जहाँ पहुंचा हूँ उनका बहुत श्रेय है प्रोफेसर अजय शर्मा साहब, अशरफ साहब, प्रोफेसर अशरफ साहब ने भी काफी अच्छी बातें बोली हैं, हमारे बड़े भाई और हर कदम पर साथ देने वाले अब्दुल रहमान साहब, और इस प्रोग्राम के नाज हमारे बिहार देश के नाज अबुकुर रहमान। तो हमारे स्टूडेंट रहमान की बात हो रही है और मैं शुरू से सुन रहा हूँ प्रोग्राम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक गुरु की जितनी खुशी होगी शायद उतनी खुशी किसी को नहीं होगी जब एक उसका शिष्य उन ऊंचाइयों को छूता है जिसकी कल्पना कभी गुरु ने भी नहीं की। आज से कोई 14 साल पहले जब रहमान हमारे पास आया था बच्चा, तब बताया कि हमारे पिताजी 150-200 रुपया मैक्सिमम कमा पाते हैं पर डे, लेकिन उनके भीतर एक आग है बच्चे को पढ़ाने की, कुछ अच्छा सिखाने की। तो पिताजी के मन में था ही, तो पिताजी और पुत्र दोनों पटना रहते थे, माँ और इनके और परिवार लोग गांव में रहते थे। अब सोचिए, पिताजी माताजी इतना त्याग की, बच्चों को मोटिवेट करती थी। वो जमाने में मोबाइल फोन का उतना एक्सेस नहीं था, फिर भी माताजी कनेक्टेड रहती थी बच्चों से, और रहमान बहुत पढ़ता था। हमारे पास जब आया रहमान तो मैंने देखा कि इसमें एक स्पार्क है, और रहमान से मुझे प्यार हो गया। इसलिए नहीं कि ये फाकाकसी के दौर से बच्चा आया, इसमें जुझारूपन मैंने देखा, ये तो सुपर 30 के सभी बच्चों में, लेकिन जो रहमान में हमने सबसे अलग और अनोखी बात देखी वो थी समस्याओं से लड़ने की ताकत। अभी हमारे
जनरल साहब ने बोला, जमीर साहब ने बोला कि बिजनेस करने के लिए आपका खानदान होना जरूरी है, अगर खानदान नहीं हो तो नेटवर्किंग और कई चीजों की बातें। मैं इसके उल्टा बोल रहा हूं, ये सब हो तो बहुत अच्छी बात, ये सब कुछ भी नहीं है। रहमान में जो है वो है किसी चीज को सॉल्व डिफरेंटली करने की, जिसकी बात जनरल साहब ने कहा कि कुछ भीड़ से अलग करो, मार्केट क्या चाहता है समझो, यही इसमें मेन खूबी है। तो जब हम मैथमेटिक्स का कोई सवाल देता था तो मैं हमारी आंखें 30 बच्चों में सबसे ज्यादा फोकस करती थी रहमान, क्योंकि जब भी मैं कोई मैथमेटिक्स का सवाल देता था तो ये बच्चा अलग अलग तरीकों से सोचता था, कई बार ऐसे मेथड बताता था कि मुझे भी सीखने का मौका मिला और बड़ा प्यार हो गया इस बच्चे से। आईआईटी हुआ, बहुत खुशी हुई। बहुत सारे बच्चे आईआईटी करने के बाद खुश होते, कहते सर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, सुपर 30 में रहा, आपने खिलाया पिलाया पढ़ाया, बहुत मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं सच में खुश कब होता हूँ जब रहमान जैसा बच्चा आज बोला कि सर क्या आप पढ़ाते थे आज भी मुझे याद है। ऐसी बातें सुनकर मेरा मन और मेरी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए उसका टीचिंग ही उसकी पहचान है, उसके पढ़ाने की कलाकारी ही उसकी पहचान है। तो मैं रहमान को कहना चाहूंगा कि हमारी शुभकामनाएं साथ है। आज 10 मिलियंस की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, होने जा रही है धीरे धीरे, और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है कि एक ना एक दिन रहमान इतनी बड़ी कंपनी बनाए कि लोग उसको प्रेरणा के रूप में ले। हमारे लिए और उन तमाम बच्चों के लिए जो निर्धनता के शिकार हैं लेकिन कोई सपना देखना चाहते हैं, अभी ही रहमान एक रोल मॉडल है। बहुत सीधा, बहुत बढ़िया, दिल को खुश कर देने वाला बच्चा है। मेरा बच्चा जगत मेरा अपना बेटा है। मैं तो चाहता हूं कि रहमान जैसा इंटेलिजेंट हो और उतना ही हम्बुल हो, उतना ही पोलाइट हो। हमारे पिताजी कहते थे कि देख बेटा, सक्सेस के लिए 2 चीजें होती है, एक तुम कितना मेहनत करते हो, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, जो रहमान में था और है भी। डेडिकेशन, रात दिन एक करने की ताकत तो था ही। और पिताजी दूसरी बात बोलती थी, गुड बिहेवियर, तुम्हारा बिहेवियर कितना अच्छा है। तो रहमान बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बुल है। अब दोस्तों याद रखो, मैंने खुद देखा सुपर 30 पर हमला करने वाले लोगों को, बहुत कम ही लोग हैं लेकिन सुपर 30 की निंदा करने वाले भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे। सबसे बड़ी बात डिस्टर्ब कर, लेकिन उनका कभी कुछ नहीं होता है, लोगों के दिलों पर राज करता है, दुनिया पर राज करता है रहमान जैसा बच्चा, जो सच में अच्छा होता है, जिसका हृदय किसी गरीब को देखकर रोता है, जिसका हृदय किसी जरूरतमंद देख के उसके जेब से पैसे निकल जाते हैं। ऐसे रहमान जैसे बच्चों पर मुझे फक्र है, मुझे गर्व है। मैं अपने बुढ़ापे की जिंदगी में जब मैं अंतिम सांस भी लूंगा तो ऐसे बच्चों को याद करके मुझ में ताजगी आ जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आनंद सर। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, आप और अकीबुर के बारे में हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इनके सुपर 30 की स्टोरी और कहानी। अकीबुर आपसे जब हमारी अकीबुर रहमान जब आपसे हमारी बात हो रही थी कभी, तो क्या आप मेरे ख्याल से अपने गांव में, चूंकि लोग कहते हैं कि आइम्स में वो बच्चे जाते हैं जो बड़े किसी टॉप स्कूल्स में पढ़ते हैं, वैसे ही आपने मुस्लिम स्कूल में पढ़ा, जिसको लोग शहर का बहुत ही ऑर्डिनरी स्कूल मानते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता वहां मुस्लिम स्कूल में करा लेता है। बहुत सारे विचार हैं लोगों के, ऐसे ख्यालात हैं, लेकिन आपने उस स्कूल में पढ़ा और प्राउडली कहा कि मैं उस स्कूल में पढ़ा आपने। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि आपके गांव का क्या माहौल था जब आप वहां से निकल के आए, और वो तो खैर जो निकल के आए, लेकिन जब आप आईआईटी किया उसके बाद आपके गांव में क्या चेंजेस आया, क्या माहौल आया? क्या बच्चों ने आपके आईआईटी करने के बाद इंस्पायर हुए आगे? कुछ उन्होंने कुछ बच्चों ने कोशिश करी पढ़ने की? जी तो जनरली बिहार में सब जगह ऐसा कुछ माहौल है कि गांव वगैरह में एटलीस्ट अभी तो लोग सब जगह पढ़ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि
15 साल पहले उतना अच्छा माहौल नहीं था, स्पेशली हम लोगों के साइड, हम लोगों के गांव में, रिलेटिव्स में, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा माहौल नहीं था कि लोग पढ़ने बाहर जाते थे या फिर कुछ पढ़कर बहुत प्रोफेशनल कोर्स करते थे। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया या ग्रेजुएशन में कुछ बीए बीएससी कर लिया, बट कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह नहीं करते थे। लड़कों को फिर भी पढ़ाते थे, लड़कियों को तो घर से बाहर नहीं निकलना होता था। हालांकि वो चीजें चेंज हुई जब लोगों को लगा कि उनके बीच का कोई है जो आगे बढ़ सकता है, जो आईटी निकाल सकता है, एम निकाल सकता है। तो उनमें डेफिनेटली कहे अनकहे एक इंस्पिरेशन शायद होता है, और एक उनके पेरेंट्स में होता है ज्यादा कि अगर किसी और का बच्चा कर सकता है उन्हीं के बीच से, तो उनके बच्चे भी कर सकते हैं। उनको भी पढ़ाने में थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और उनको फोकस करना चाहिए। नहीं तो जनरली वो फोकस होता नहीं, उन लोग समझते नहीं कि नहीं क्या करेगा, हम तो गांव से हैं, हम तो बिहार से हैं, पूर्णिया से हैं। उतना ज्यादा लोगों में नहीं होता, बट अगर वो देखते हैं कि उनके बीच से कोई जा रहा है कहीं अच्छी जगह, तो डेफिनेटली उनको इंस्पिरेशन मिलता है। चलिए, ये तो आपने बताया। अच्छा आकिबुर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग गांव से निकलते हैं, उनको लाखपति बनने की ख्वाहिश होती है, करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आकिबुर रहमान को जो सीड फंड मिला था वो 2 मिलियन USD का हुआ था, लेकिन आज के डेट में इनकी कंपनी अप्रोक्सीमेट 10 मिलियन डॉलर की है, यानी करीब 70-80 लाख 80 करोड़ की कंपनी है इनकी, और जो बहुत जल्द 100,000 100 करोड़ के क्लब में जाने वाली है। बहुत कम लोग, बहुत ही थोड़े लोगों का ये अचीव कर पाते हैं। तो क्या जब ये सारी खबर आपके गांव में लोगों तक पहुंची, तो क्या आपके गांव के लोग या रिश्तेदार लोगों का क्या ख्याल था? तो ये जो $10 मिलियन वैल्यूएशन है कंपनी का, मतलब ऐसा ये नहीं कि इतना कमाती है कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम लोग मांगेंगे नहीं आपसे। तो कंपनी अभी छोटी है काफी, और बड़ा बनना बाकी है अभी वैसे तो, लेकिन और काफी नई न्यूज भी है, तो जो लोग सुनते हैं सब, और जो जो थोड़ा वो समझते हैं, वो उनको अच्छा लगता है डेफिनेटली कि उनको खुशी होती है एक्चुअली जान करके, अच्छा कोई कोई तो है कुछ अलग कर रहा है, कुछ बना रहा है। जनरली हम लोगों के यहाँ सब जगह, बिहार में स्पेशली मैंने देखा है कि एक वो होता है कि जॉब करना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, कुछ अब बिजनेस करना बहुत अलग माना जाता है। तो लेकिन शायद जैसे जैसे लोगों में माइंडसेट चेंज होता है जो आईटी करने के बाद या आईएम करने कोई एक बच्चा करता है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप में एक बार को प्रिफर करेंगे जब उनको लगे कि हाँ उनके बीच से कोई बच्चा निकल कर एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो अभी वो स्टेज नहीं आया, बट शायद इंशाल्लाह वो आएगा ये स्टेज। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 100,000 क्लब में आप जा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ। इससे ये बताता है कि आपका ख्वाब कितना बड़ा है। अच्छा, तो आनंद सर मुस्कुरा रहे हैं। आनंद सर, ये जो आपके यहाँ एक बेस्ट ट्रेंड है कि आप अपने 30 बच्चों के अंदर भी कंपटीशन कराते हैं, और उस कंपटीशन में बच्चों को प्राइज वगैरह देते हैं। तो आकिब जब बार बार प्राइज जीत जाते थे, तो आपने कभी उनको डांटा नहीं? हाँ, नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगता था कि भाई ये बच्चा प्राइज जीत रहा है, और मुझे बहुत खुशी होती थी। और सच पूछिए तो कई तस्वीरें हमारी है, हमारे पास है, पुरानी तस्वीरें। उस समय भी मेरे पास एक रील वाला कैमरा आता था, तो उससे मैं फोटो ले लिया करता था। तो अभी भी कई तस्वीरें हैं कि जिसमें रहमान ले रहा है प्राइज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था रहमान को खुश होते देखना। अच्छा लगता था कि और दुगने उत्साह से सवालों को बनाता था, तो सब कुछ काफी अच्छा लगा था। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा, ऑडियंस को, कि हमारे बड़े भाई अब्दुल रहमान है ऑन द लाइन ऑफ सुपर 30। इन्होंने भी 30 बच्चों को, कभी 10 बच्चों को, कभी 20 बच्चों को, जितने बच्चे मिल जाते हैं उसको लेके पढ़ाने का काम किया। हम लोग मदद करते हैं और ये पढ़ाते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि अब्दुल रहमान साहब का भी हौसला बढ़ाए,
और जहां से जैसे हो इनका हाथ को मजबूत करे, ताकि समाज की इस तरह के बच्चों को और भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अच्छा आकिब, आप बहुत शुक्रिया आनंद सर। अच्छा आकिब, आप रहते थे रमना रोड में, जो कि मेरे घर के बिल्कुल करीब है, और आनंद सर का कोचिंग जो है वो करीब वहां से 4 किलोमीटर ऐसे एरियल है, लेकिन अगर वो आड़े तिरछे रास्तों से जाए तो बड़ा लंबा रास्ता होता है। फिर एक ओवर ब्रिज को क्रॉस करना या गुमटी को क्रॉस करना साइकिल लेके। तो कैसा था वो सफर कि क्लास के लिए भागे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वक्त पे नहीं पहुंचे तो कहीं आनंद सर डांट न दें क्लास में। ये सब कुछ फीलिंग्स अपने अपने सुपर 30 की बताएंगे आप? नहीं, एक तो आनंद सर की क्लास में कभी लेट हुए नहीं शायद हम लोग। तो एक उस टाइम पे भी मतलब काफी जब यंग होते हैं तो ऐसा 4 किलोमीटर ज्यादा कुछ होता नहीं है। और तो मतलब काफी उत्साह रहता था उस टाइम पे भी। तो जब उत्साह होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको है कि करना है, ये चीज पसंद है, तो जो चीज पसंद आती होती है उसके लिए आप, या जो आपका मकसद होता है, अगर आप उसके लिए बहुत ही शिद्दत के साथ काम करते हैं तो उसमें कोई तकलीफ होती नहीं, मजा ही आता है हमेशा। तो मतलब मैं वही कहूँगा कि ऐसा कुछ ये नहीं था। पूरा जो सफर था वो काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार था। वो 2 साल मतलब लगा नहीं कि कब गुजर गया, और हाँ फिर एग्जाम भी हुआ, निकल भी गया। तो एंड भी अच्छा हुआ। तो एंड अच्छा होता है तो कोई कोई दुख नहीं उसका कुछ भी। अच्छा आनंद सर जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दे देते थे बनाने के लिए आईआईटी के लेवल के, तो उसके बारे में कुछ स्टोरी बता सकते हैं आप कि आनंद सर कितने टफ क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करके बताते थे? तो एक जो अच्छी चीज है जो शायद बहुत सारे दूसरे टीचर्स को सीखनी चाहिए आनंद सर से, वो है कि टफ क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। सिंपल क्वेश्चन से ही पहले आपको बेस बनाना पड़ता है। तो वो चीज शायद आनंद सर बहुत अच्छे से करते थे कि सारे बच्चों के लिए वो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, और धीरे 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 बहुत धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते थे, और लास्ट में एक टफ क्वेश्चन आता था। तो और टफ क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना, वो समझना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आप ऐसे क्रैक नहीं कर सकते कि आपने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आप तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपको उस क्वेश्चन क्यों पूछा गया है वो आपको पता है, उस क्वेश्चन के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर वो आपको समझ में आता है तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको शायद किसी किताब में पहले मिलेगा नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं। बहुत तो वो शुक्रिया। आनंद अच्छा, में बहुत ज्यादा हाँ कुछ खूबी बोल थी। रहे थे आप? हाँ, तो वो बहुत ज्यादा खूबी थी आनंद सर में कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्यों अगर कोई फॉर्मूला है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो क्यों है। अ, तो अगर वहां से अगर कोई स्टार्ट करता है तो क्यों का आंसर होना जरूरी है। लोग रट लेते हैं फॉर्मूला, बट उससे काम नहीं चलता है। बहुत शुक्रिया आप आकिब आपका। अच्छा ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आनंद सर हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी चीज का हाउ एंड व्हाई जानना बहुत जरूरी है। तो आनंद सर आपको दो सवाल मेरे एक साथ आपसे है। एक तो ये कि आकिबुर के से जुड़ी कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद हो वो बताइए, और दूसरी चीज ये कि ये जो आप हमेशा बताते हैं, क्योंकि काफी बच्चे जुड़े हैं इसमें हमारे, तो हाउ एंड व्हाई के बारे में भी कुछ आप बताएं। बहुत अच्छा बताया रहमान ने। और कि हाउ एंड व्हाई, देखिए आज जो भी लोग अच्छी जगह पर हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर साहब अजय शर्मा जी हो, इनसे भी जब बात हुई, जब मुलाकात हुई, तो हर चीज का हाउ एंड व्हाई समझना चाहते हैं। या हमारे हम देख रहे हैं बिलाल खान साहब को, उनको प्रणाम करते हैं, हमारे बड़े भाई। बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर, कतर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान है। तो वैसे ऐसे लोग भी जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल, वो सारे लोग हाउ एंड व्हाई को ही समझे। कोई चीज को रट दीजिएगा, चाहे वो मैथ का फार्मूला हो, बिजनेस का फार्मूला हो, किसी चीज का फार्मूला, अगर आप रट दीजिएगा तो आप वहीं पर लिमिटेड हो जाएंगे।
लेकिन हमने देखा कि भाई हर बच्चों में ये बात सिखाने का प्रयास किया, उनको समझाने का कि हाउ एंड व्हाई जरूर सीखो। और चलते चलते आखिरी में मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर हमारे अब्दुल रहमान साहब एक कभी प्रोग्राम करते हैं, एक लेक्चर मैथमेटिक्स का केवल बच्चों के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं, तो मैं भी सौभाग्यशाली समझूंगा कि एक दिन 1-1.5 घंटा केवल मैथमेटिक्स पढ़ा के दिखाऊं। इसलिए रहमान भाई से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का ऑर्गेनाइज करिए, आप बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम लोग उसको अंजाम देंगे। सर, इससे अच्छी क्या बात होगी हमारे लिए। ये तो आज हमारे लिए बहुत ही अच्छी, और खास के जो बच्चे सुन रहे हैं उनके तो दिल में लड्डू फूल रहा होगा। बहरहाल वक्त बहुत हो गया है, और आप लोगों को मैं बता दूं एक जी की कमिटमेंट क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट ये है कि अकीबुर रहमान के फादर हॉस्पिटल में हैं पटना में। वो दिल्ली से आए पूर्णिया, और फिर पूर्णिया से उनको लेकर के पटना हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कराया। फादर हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन हुआ है। हमने पूछा भी कि क्या आप प्रोग्राम कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रोग्राम तो करूंगा, कमिटमेंट है हमारा। तो इसको कहते हैं कमिटमेंट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आकिबुर रहमान आपका, कि आपने इतने सारी चीजों के बावजूद आपने टाइम निकाला। और आपकी फादर बीमार हैं, लेकिन फिर भी आप आज हम लोगों के रूबरू हैं। ये हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है। तो अकीबुर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जो नए जनरेशन के बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, या आईटी करना चाहते हैं, या जिंदगी में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? एक तो ये बोला सक्सेस को हम लोग बोलते हैं, कई बार कॉल में भी बोला सक्सेस सक्सेस, बट सक्सेस कुछ होता नहीं है, मतलब कहीं आता नहीं है सक्सेस। वो एक जर्नी है, और हर एक जिंदगी का हर एक मुकाम एक तरह से सक्सेस हो सकता है, और फेलियर भी हो सकता है। तो फेलियर से भी नहीं डरना चाहिए। और कई बार फेलियर होता है, और हर कोई, हम लोग भी, सब लोग फेल होते हैं कहीं ना कहीं किसी चीज में। भले बड़े एग्जाम में पास हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट कई सारे छोटे एग्जाम्स में भी फेल होते हैं। तो फेल होना बुरा नहीं है, और सक्सेस के पीछे भागना नहीं है। बस आप सब लोग को वो ट्राई करना होता है और अपना बेस्ट देना है। आप जो भी कर रहे हो, आपको पसंद आना चाहिए वो चीज, और उसमें आप बेस्ट दीजिए। भले आपका सक्सेस हो या ना हो, तो कर्म किया जाए, फल की चिंता मत करो। दैट इज द मेन मैसेज हियर। बहुत शुक्रिया आपका आकिबुर। अभी आपने जो बातें कही कि सक्सेस से घबराना, मतलब फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने केएफसी खाया होगा, और बड़े चाव से और बड़े इससे केएफसी खाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि केएफसी सेंडर्स जो है 1009 बार रिजेक्ट किए गए थे। 1009 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 50 बार नहीं, 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद, और अपने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद जो उनका रेसिपी है उसको अप्रूव हुआ, और आज पूरी दुनिया में केएफसी खाया जाता है। तो फेलियर से सक्सेस कैसे होता है, ये जो आपको अकीबुर ने बताया। और मैं बच्चों, जैसा अभी जमीरुद्दीन शाह साहब ने बताई कि पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ समझेंगे नहीं। अमूमन हमारे बच्चे, हमारे इसके बच्चों को पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। वो मोबाइल हाथ में यूज किए होते हैं, आईफोन, लेकिन उनसे ज्यादातर लड़कियों से पूछिए कि आईफोन का इन्वेंटर कौन है, तो नहीं बताएंगे। केएफसी खाते हैं, लेकिन केएफसी का इन्वेंटर कौन है, कैसे उसकी सक्सेस स्टोरी थी, क्या उसने किया। आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए लोगों की जो जद्दोजहद की कहानी है, कैसे वो आगे बढ़े, जिंदगी में क्या अचीव किया, वो पढ़ना चाहिए। इसलिए कि दुनिया जो है वो सक्सेस को देखती है, फेलियर के बारे में नहीं जानती है, ये जानना नहीं चाहती, लेकिन वो भी जानना चाहिए। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम में, बिलखुसूस हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ रिजवी साहब का, जो काफी तबीयत उनकी अलील है, ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। उसके बाद हमारे प्रोफेसर वी के
शर्मा जी, प्रोफेसर शर्मा जी, अजीत कुमार शर्मा जी, जो आनंद जी ने जो उनके बारे में बताया, और मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं पहली फुर्सत में उनसे जाके मुलाकात करूंगा और उनके बारे में जो कुछ हमने पढ़ा है और जाना है वो मुझे काफी इंस्पायर कर रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत अच्छे, जिन्होंने मुझे प्रोग्राम के दौरान काफी गाइड किया। और ऑफ कोर्स हमारे जमीरुद्दीन शाह साहब, जो हमारे मेंटर हैं, उन्होंने जो बातें करी, जो बातें कही उन्होंने, वो काफी हम लोगों के लिए मसलेरा है, खास करके इन बच्चों के लिए। और ऑफ कोर्स आनंद कुमार जी, जो न जाने कितने लड़कों को ये अकीबुर रहमान हमारे सामने हैं, और ऐसे कई 100 बच्चों की स्टोरी है। भास्कर जो इस प्रोग्राम में को सुन रहे हैं, वो भी हम लोगों के साथ हैं। भास्कर इस प्रोग्राम को कोट कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। उनमें हमेशा स्टोरी आनंद जी की निकलती है। आपको पढ़नी चाहिए हर स्टोरी, हर बच्चों की स्टोरी, कि कैसे वो गांव से, गुर्बत से, और किस तरीके से वो निकल के आए और आज अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या अचीव किया है। ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए। आनंद जी इसकी एक स्टोरी निकाल रहे हैं बहुत। उसके अलावा जो हमारे दोस्त हैं, खास के अनवर जमाल साहब, मोइजुद्दीन साहब, यूसुफ साहब, अनवारुल हुदा साहब, गयासुद्दीन साहब जो कनाडा से, उसके अलावा बिलाल खान साहब, हमारे डॉक्टर जावेद साहब मलेशिया से, अशरफ हमारे समदानी साहब, डॉक्टर दिलशाद हुसैन साहब, डॉक्टर दिलशाद साहब, और फखर आलम साहब, गयासुद्दीन साहब कनाडा से, बीजू मैथू जी, और न जाने कितने लोग दुनिया के डिफरेंट कंट्री से, जिनका नाम मैं याद नहीं पड़ रहा है या देखने नहीं पा रहा हूँ। या अख्तर हुसैन साहब, बिलाल खान साहब, हमारे कतर से शाहबुद्दीन भाई, और तमाम लोग पूरी दुनिया से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और हम लोगों के एक स्टूडेंट पंकज, जो तमाम लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने शुरू से आखिर तक इस प्रोग्राम में बने रहे, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम हम लोग और भी करते रहेंगे, जिससे, और खास करके जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे रहमान शट्टी के बच्चे हैं, उनके लिए ये काफी स्टोरी है अच्छी, उनको काफी कुछ सीखने को लिए मिलेगा। और भी इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।